Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your chemistry class. But before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with our work for chemistry. This is your preparatory assignment video for unit test preparation. Assignment number 2, the exercise question answer of chapter 1, that is language of chemistry. The first question is what is a symbol, what information does it convey, कि एक सिंबल क्या होता है और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है. Symbol represent the short form of an element. It convey qualitative and quantitative information about the element. Symbol एक short form of element को represent करता है और ये हमें बताता है कि कितनी इस क्वालिटी वाइज इसकी नेम क्या है, क्वांटिटी वाइज इसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है ऑफ दैट एलिमेंट्स. दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. Next question, what qualitative and quantitative information is conveyed by a symbol? Answer is a symbol has qualitative and quantitative significance. Qualitative इसका क्या significance है कि जो एक सिंबल है वो नेम ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट का नेम क्या है. जस्ट लाइक फॉर हाइड्रोजन वी जस्ट राइट एच. एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन एलिमेंट. सो नेक्स्ट क्वांटिटेटिवली एक सिंबल हमें क्या बताता है कि वन एटम ऑफ एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, कि एक एटम है एलिमेंट की वो प्रेजेंट है वहाँ पे. नेक्स्ट अबाउट हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन इट्स 1 ग्राम एटम, कि 1 ग्राम एटम में कितने एटम प्रेजेंट है. नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन एटॉमिक मास यूनिट टेकन एज अ स्टैंडर्ड, कि कितने नंबर ऑफ एटम है वो हैवियर है एज कंपेयर टू 1 AMU which is taken as a standard. So next question is, third question is, what do you understand by the term chemical formula? What qualitative information is given by the formula NH3? First of all, chemical formula होता क्या है? A molecular formula, also known as a chemical formula, employs symbol to denote molecules. Molecular formula को ही हम chemical formula कहते हैं और ये एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की. सो नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है कि कौन सी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन गिवन बाय द फॉर्मूला NH3. NH3 जो फॉर्मूला है हमें कौन सा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रहा है. NH3 मीन्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3, कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द अमोनिया, दैट इज NH3. Each molecules contain one nitrogen atom joined by a chemical bond with 3 hydrogen atoms. The molecular mass of ammonia is 17, given that atomic mass of nitrogen is 14 and that of hydrogen is 1. NH3 हमें ये क्या बता रहा है कि जो ईच मॉलिक्यूल होगा NH3 मतलब अमोनिया का, उसमें क्या होगा, एक एटम होगा नाइट्रोजन का और जो 3 एटम किसके प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के, विच आर ज्वाइंड बाय अ केमिकल बॉन्ड. एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जो एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम ज्वाइंड होंगे. नेक्स्ट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17. जो मॉलिक्यूलर मास है अमोनिया का वो कितना है, 17. वो कैसे हुआ, क्योंकि द मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज 14 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1. यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, सो दैट्स वाई
14 plus 3 into 1 equals to 14 plus 3 equals to 17 AMU. This is the molecular mass of ammonia. So next question is, what do you understand by the term valency? कि वैलेंसी क्या होती है? Valency, it is the combining capacity of an element. It is the number of electrons that are shared, lost or gained during the course of a chemical reaction. वैलेंसी क्या है कि एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वो किसी के साथ कंबाइन कैसे करेगा, या उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिसे वो शेयर कर सकता है, लॉस्ट कर सकता है या फिर गेन कर सकता है. क्यों करेगा? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लॉस्ट करेगा या फिर गेन करेगा. सो दिस टर्म इज नोन एज वैलेंसी. इसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी. वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 पॉजिटिव बिकॉज इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी सोडियम की 1 पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा. दैट्स वाई इसकी वैलेंसी क्या है? +1. लूज करेगा तो पॉजिटिव है. अगर कोई एलिमेंट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी? नेगेटिव. यू कैन सी इन दी अनदर एग्जाम्पल. वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2. -2 क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया. सो दैट्स वाई इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वैलेंसी बिकम -2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेरिएबल वैलेंसी? वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन विच some elements show more than one value of valency in different compounds. These elements are said to be possesses variable valency. हमारे पास कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इन अ डिफरेंट कंपाउंड में मोर देन 1 वैलेंसी शो करते हैं. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल. हमारे पास यहाँ पे है आयरन ऑक्साइड है, या जिसको हम बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, और आयरन 2 ऑक्साइड. यहाँ पे आयरन की वैलेंसी हमारे पास कितनी है? 2 +2. लेकिन इन फेरिक ऑक्साइड है तो आयरन का ही कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे आयरन की वैलेंसी हमारे पास कितनी है? +3. सो डिफरेंट कंपाउंड में आयरन है, डिफरेंट वैलेंसी शो कर रहा है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी? वेरिएबल वैलेंसी. द एलिमेंट आर सेड टू बी पोसेसेस वेरिएबल वैलेंसी. इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ आर द एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी नेम. जिन एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट, इनके 2 पॉजिटिव वैलेंसी हो तब हम उनको कैसे डिनोट करते हैं? अगर लोअर वैलेंसी है उसके लिए फिक्स लास्ट में जो फिक्स्ड है वो कौन सा यूज़ करते हैं? अस, OUS एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ मेटल. अगर हायर वैलेंसी है तो उसके लिए एक IC. हायर वैलेंसी के लिए यूज फिक्स एंड में यूज़ करते हैं, दैट इज एक. यू कैन सी द एग्जाम्पल. आयरन है, आयरन का लैटिन नेम है फेरम. इसकी अगर लोअर वैलेंसी है तो इसको क्या बोलेंगे हम? फेरस. फेरम को क्या बोलेंगे? फेरस फॉर लोअर वैलेंसी. एंड फॉर हायर वैलेंसी लास्ट में क्या आ जाएगा? OUS की जगह पे हमने IC लगा देना, एक. फेरिक. फॉर हायर वैलेंसी एक, for lower valency OUS. So next question is, what is the symbol as? Why is the symbol S for sulfur but Na for sodium and Si for silicon? कि हम सल्फर के लिए सिंबल S यूज़ करते हैं, सोडियम के लिए Na यूज़ करते हैं, सिलिकॉन के लिए Si करते हैं. ये क्यों करते हैं? इन मोस्ट केसेस first letter of the name of the element is taken as a symbol for that element and written in capital. कई केसेस में हम क्या देखते हैं? सिर्फ फर्स्ट लेटर देखते हैं. जस्ट लाइक सल्फर है, सल्फर का फर्स्ट लेटर है S, उसको हम इसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो दैट्स वाई फॉर सल्फर वी यूज S, फर्स्ट लेटर. बट इन सम केसेस फर्स्ट लेटर हैज़ already been adopted,
कि कई केसेस में जो फर्स्ट लेटर है वो पहले ही हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर। सोडियम को हम एस से डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि एस तो हमने ऑलरेडी किसके लिए यूज़ कर लिया, सल्फर के लिए। सो नाउ वी यूज़ देयर लैटिन नेम। तो हमने यहाँ पे सोडियम के लिए उसका जो लैटिन नेम है विच इज़ नेट्रियम, उसका फर्स्ट लेटर यूज़ कर लिया हमने टू रिप्रेजेंट सोडियम। सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसका लैटिन नेम है नेट्रियम, उसके जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, यू कैन सी हियर सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम। इसके जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, फर्स्ट वन जो है वो क्या लेंगे, कैपिटल, सेकंड वन लेंगे स्मॉल, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए ऐसा ही यूज़ करते हैं। इन दीज केसेस वी यूज़ फर्स्ट 2 लेटर्स। इसमें भी हमने इसके सिलिकॉन के लिए भी हमने इसके फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज़ किया। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड जो लेटर है उसको स्मॉल वन ना स्मॉल लेटर में हमने उसको नोट डाउन किया। सो दीज आर द सिम्बल्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिंबल फॉर कोबाल्ट इज रिटन एज CO, व्हाट वुड रॉन्ग विद इट। अगर हमने कोबाल्ट के लिए दोनों कैपिटल है, C भी कैपिटल है O भी है, अगर हमने इसको यूज़ कर लिया तो इसमें रॉन्ग क्या होगा। कोबाल्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट सिंबल इज CO, C कैपिटल है O स्मॉल है। इसके लिए हम दोनों कैपिटल नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर हमने CO लिया, दोनों कैपिटल लिए, देन इट शो इट सेल्फ एज अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 नॉन मेटल्स। ये हमें क्या बताएगा, इस कंपाउंड में 2 नॉन मेटल्स हैं, फर्स्ट वन कार्बन, सेकंड वन ऑक्सीजन, विच फॉर्म अ गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। वो दोनों क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो विच इज़ नेम्ड बाय अ ग्रीक प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग है। इसीलिए हम कोबाल्ट को C कैपिटल O स्मॉल इसके साथ ही सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट विद दिस, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट अबाउट दी कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग अ प्रॉपर वर्ड और प्रॉपर वर्ड। फर्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट एन, जो फॉर्मूला है कंपाउंड का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एटम को, अ पार्टिकल को, अ मॉलिक्यूल्स को, अ कॉम्बिनेशन को। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट एन एटम, जो एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नेक्स्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3. This is the correct formula for aluminium oxide. Next, the valency of nitrogen in nitrogen dioxide that is NO2 is 4. कितनी है यहाँ पे इसकी valency 4. So there are some valencies formulas for some radicals and ions. You can see here अमोनिया का सिंबल क्या है, ये हमारे पास रेडिकल्स हैं और आयन है। अमोनिया को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू दी सिंबल NH4 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी है 1 पॉजिटिव। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 पॉजिटिव। फेरिक, इसका सिंबल है Fe3 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव है। जिंकेट ZnO2 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी कितनी है -2। ऑक्साइड दैट इज O2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी कितनी होगी -2। नाइट्राइड N3 नेगेटिव दैट इज इस वैलेंसी भी कितनी है 3 नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव और इसकी वैलेंसी कितनी है -1। क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 पॉजिटिव। स्टैनिक SN4 पॉजिटिव और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4 पॉजिटिव। वेरियम Na2 पॉजिटिव और इसकी वैलेंसी कितनी है 2 पॉजिटिव। So this is all about the valency formula for radicals and ions. Next question is, what do you understand by the trivial name of compound? Trivial names क्या होते हैं? There are certain compounds whose names do not follow any systematic rule. Such names are called trivial names or common name. हमारे पास कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करने के लिए हम कोई भी सिस्टमेटिकली रूल नहीं अपनाते, उनका कोई कॉमन नेम ले लेते हैं या फिर उनके जो नेम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ट्रिवियल नेम। जस्ट लाइक हमारे पास फॉर्मूला है NH3, इसका कॉमन नेम है अमोनिया और इसका IUPAC नेम है
नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। इसके लिए हमने कोई ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर कोई कॉमन रूल फॉलो नहीं किया, तो ये क्या है इसका ट्रिवियल नेम। H2O इसका कॉमन नेम क्या है वाटर, तो ये भी क्या हुए इसके ट्रिवियल नेम हुए। So next question we have, what do you understand by the term chemical equation? Why should a chemical equation be always balanced? Chemical equation होता क्या है? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reactions using the symbols and formula of the substance involved in the reaction. Chemical equation के थ्रू हम एक chemical reaction को symbol के थ्रू represent करते हैं, और जो उसमें reactant and product की participation होती है उसको हम show करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस होनी चाहिए? एक केमिकल रिएक्शन इसीलिए बैलेंस होनी चाहिए क्योंकि इट मस्ट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को कंजर्व करे, उसको फॉलो करे। दैट्स वाई जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या स्टेट करता है कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन कर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि मैटर ना तो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। सो दैट्स वाई जो मैटर है वो जो एटम्स हैं बोथ साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड ही होनी चाहिए। An unbalanced equation would implies that atoms have been created or destroyed. अगर इनबैलेंस इक्वेशन होगी तो वो क्या शो करेगा कि वहाँ पे न्यू एटम्स या तो क्रिएट हो रहे हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो विच इज़ नॉट फेवरेबल इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सो दैट्स वाई ईच केमिकल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। सो नेक्स्ट अबाउट हमें फॉर्मूला, हमें नेम गिवन है, उसके फॉर्मूला और वैलेंसी को बताना है। एल्यूमिनेट इसका फॉर्मूला है Al(O2) और इसकी वैलेंसी है -2। क्रोमेट है, क्रोमेट की जो वैलेंसी है CrO4, इसकी जो वैलेंसी है -2 है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम Al के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी है +3। क्यूप्रिक Cu और इसकी वैलेंसी है +2। नेक्स्ट सॉल्ट गिवन है हमें, इसके फॉर्मूलाज बताने हैं हमें। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस, बेरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटाशियम जिंकेट K2ZnO2, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला है AgCl। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट एंड देयर फॉर्मूलाज। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला गिवन है और उनका नेम बताना है। Na4FeCN6 इसका नेम है सोडियम फेरोसाइनाइड। CaSiO3 इट्स नेम इज कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। K2Cr2O7 and its name is potassium dichromate, it's potassium dichromate. Next Mn3BO3 twice, that is manganese borate. Next about Na2CrO4, that is sodium chromate. HClO, that is hypochlorous. H2SO4, that is name is sulfuric acid. HNO3, its name is nitric acid. H2CO3, that is carbonic acid. HNO2, that is nitrous acid. So there next we have formulas and write their names. Al2SO4 thrice, that is aluminium sulfate.
HCO3 twice, that is magnesium bicarbonate, NH4 twice as ammonium sulfide, KClO3 that is potassium chlorate, KClO potassium hypochlorite, PbNO3 twice lead nitrate, KMnO4 potassium permanganate, Na2PbO2 potassium plumbite, CuSO4 that is copper sulfate. So this is all about your assignment second. Prepare this for your unit test. If you have some doubts, then we will discuss in your online class. Thanks students. Have a nice day. Stay home, stay safe.